नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। राज्य के मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल कार्यक्रम का उद्घाटन। 1000 महिलाओं को लक्ष्मी भंडार परियोजना के तहत सौंपी राशि। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से पूरे उत्तर बंगाल के जिलों में 1000 से अधिक महिलाओं को बुधवार को लक्ष्मी भंडार परियोजना की राशि सौंपी। जलपाईगुड़ी के सरोजेंद्र देव रायकत कला केंद्र में आयोजित समारोह में उक्त राशि प्रदान की गई। वहीं अलीपुरद्वार नगर पालिका के सभागार में आज 20 लाभार्थियों को लक्ष्मी भंडार के तहत चेक सौंपा गया। इस अवसर पर अलीपुरद्वार जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक वाई रघुवंशी, जिला परिषद के अध्यक्षा शीला दास सरकार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। आज जलपाईगुड़ी में इस कार्यक्रम में राज्य के मंत्री बुलोचक बराइक, जलपाईगुड़ी के विधायक डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा, राजगंज के विधायक खगेश्वर रॉय, जिलाधिकारी मौमिता गोदरा बासु और अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे थे। इस बीच मंत्री बोलोचिक बराइक ने कहा कि राज्य सरकार ने लक्ष्मी भंडार परियोजना के माध्यम से कुल 1000 से अधिक महिलाओं की मदद की है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कोलकाता से वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। আপনারা জানেন কি আজকে রাজ্য স্তরীয় প্রোগ্রাম ছিল। এখানে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রোগ্রামটা এখানে হয়েছে। और এখানে বেসিক্যালি যারা লক্ষ্মী ভান্ডারে আপনারা জানেন কি কিছুদিন আগে দুয়ারে সরকার হয়েছিল ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে, সেখানে যারা নতুন আবেদন করেছিল তাদের স্টেট ওয়াইজ 5 লাখ, যেটা আপনারা শুনলেন একটু আগে ভার্চুয়াল প্রোগ্রাম ছিল, তো ওটা ওখান থেকে সিএম ম্যাডাম অলরেডি অ্যাপ্রুভ করেছে ওখান থেকে। ওই তো আমাদের জেলাতে এরকম বেনিফিশিয়ারি ছিল, তো এরা আজকে বেসিক্যালি প্রসেস হয়ে গেলো, অ্যাপ্রুভ হয়ে গেলো, তারপরে এদের অ্যাকাউন্টে টাকাটা ঢুকে যাবে। এখানে আমাদের পুরো জেলাতে এখন পর্যন্ত 2,78,000 মানে আগসা ফেজ মিলিয়ে বেসিক্যালি এখানে অ্যাপ্রুভ হয়েছে, এরা টাকা পাচ্ছে। আজকে স্টেজে 20 জনকে এখানে দিলাম, আর বাকিগুলো ওদের অ্যাকাউন্টে টাকাটা ঢুকে যাবে। ওদেরকে সিএম ম্যাডামের শুভেচ্ছা বার্তা और স্যাংশন লেটার ওদেরকে অলরেডি দেওয়া হয়ে গেছে। কতজন সেটা স্যার? কতজন? 20 জন তো স্টেজে দেওয়া হলো না, বাকি বললাম 2,78,000 এই আছে। রিপোর্টটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেবো, ডিটেল ব্লক ওয়াইজ আমার কাছে ফিগার আছে, সেগুলো আমরা দিয়ে দেবো। জেলায় নতুন করে কত হলো এখানে? নতুন করে এখানে ছিল 48,000 নতুন করে, এই যে লাস্ট ফেজগুলো হলো, তো সব মিলিয়ে আমি বললাম এখানে ফিগারটা ব্লক ওয়াইজ আমার কাছে আছে, তো এটা আমি আপনাদেরকে শেয়ার করে দেবো ইনফরমেশন। লক্ষ্মী ভান্ডার যে লক্ষ্মী ভান্ডার যেটা স্কিম, যেটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে যে লক্ষ্মী ভান্ডার স্কিম আপনি জানেন 2021 সালে বিধানসভার সময় উনি কথা দিয়েছিলেন, যদি আমরা সরকারে যদি আবার ফিরে আসি তাহলে আমরা সমস্ত যারা 16 বছরের উপরে যারা মহিলা আছেন তাদেরকে আমরা লক্ষ্মী ভান্ডার দেব। সেইটা লক্ষ্মী ভান্ডার এসটিদের জন্য 1000 টাকা পেনশন করে লক্ষ্মী ভান্ডার দিয়েছে, এসটিদের জন্য 500 টাকা করে দিয়েছে। তারই এখানে একটা অনুষ্ঠান আছে, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা থেকে এই অনুষ্ঠানটাকে আজকে শুভোদ্বোধন করবে। তো আজকে সমস্ত জেলা হয়েছে, আজকে এরকম প্রোগ্রাম হচ্ছে। এখান থেকেও আমাদের লক্ষ্মী ভান্ডারের অনেক যারা আছে এখানে, তাদেরকেও এখান থেকে দেওয়া গেছে। জলপাইগুড়ি 1000 কন্যাশ্রী মানে কী বলে লক্ষ্মী ভান্ডার, যেটা ওদেরকে 1000 মেয়েদেরকে আজকে এখান থেকে দেওয়া হবে। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের জেলার সভাধিপতি আছেন, আমাদের মিডিলে আছে, ডিএম ম্যাডাম আছে, সবার উপস্থিতিতে আজকে আমাদের জলপাইগুড়ি আর্ট গ্যালারিতে এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে। এখান থেকে কতজনকে স্যার দেওয়া হবে? 1000 জনকে এখানে দেওয়া হবে। सिलीगुड़ी अंतर्गत बागडोगरा इलाके के चाय बागान से नवजात बच्ची को किया गया बरामद। इलाके में मचा हड़कंप। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में बच्ची का चल रहा है इलाज। सिलीगुड़ी महकुमा अंतर्गत बागडोगरा स्थित मुनि चाय बागान से आज एक नवजात बच्ची को बरामद किया गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।
स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त नवजात बच्ची चाय बागान के गार्डन लाइन में मिली। वहीं बागडोगरा ट्रैफिक पुलिस आलोक नागवंशी और एक न्यूज पोर्टल के रिपोर्टर सुनील सिंह और महिला रिपोर्टर पापड़ी भौमिक द्वारा बच्ची को बागडोगरा स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए बरामद कर तत्काल भर्ती कराया गया। वहीं फिलहाल उक्त बच्ची को नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जो बच्चे का इलाज चल रहा है और वहां पहले से बेहतर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है कि आखिर चाय बागान के अंदर नवजात बच्ची को किसने और क्यों छोड़ा। देखिए, मैंने जो सुना है, एक बागडोगरा के नज़दीक एक टी गार्डन एरिया में जन्म लेने के बाद किसी ने छोड़ के गए थे, तो वहाँ का बागडोगरा पुलिस और जो आई लव बागडोगरा एक चैनल है, उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग लेके उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में एसएनसीयू में बच्चे को दाखिल किया। अभी बताना मुश्किल है कैसे है, ऑब्जर्वेशन में बच्ची रहेगी, कारण शुरू से एंटीनेटल पीरियड किसका बच्चा है पता नहीं, एंटीनेटल पीरियड कैसा गया, कोई रिस्क फैक्टर था या नहीं, ये सब हम लोगों को पता नहीं। तो ऑब्जर्वेशन में रहेगी, उसके बाद पता चलेगा 2-3 दिन बाद जो स्थिति कैसा है। तो फिलहाल स्थिति स्टेबल है, देखते हैं, डॉक्टर लोग कोशिश कर रहे हैं और मैं उनको अभिनंदित करता हूँ जो एनजीओ ने अच्छा काम किया और बागडोगरा पुलिस हमेशा के तरह आज भी अच्छे से एक ह्यूमैनिटेरियन काम किया, इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। जलपाईगुड़ी जिले के तृणमूल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण कुमार कल्याणी का हुआ निधन, पूरे जिले में शोक की लहर। जलपाईगुड़ी जिले के तृणमूल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण कुमार कल्याणी की मंगलवार की देर रात मृत्यु हो गई। सूत्रों के अनुसार वह 6 महीनों से अधिक लंबे समय से विभिन्न बीमारियों से पीड़ित थे। उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत थी। उन्हें मंगलवार की दोपहर को जलपाईगुड़ी के एक निजी नर्सिंग होम में चिकित्सा के लिए भर्ती कराया गया था और इस बीच बताया गया कि उनका निधन हो गया है। उन्हें बुधवार को इलाज के लिए मुंबई ले जाया जाना था, हालांकि मुंबई ले जाने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि कृष्ण कुमार कल्याणी जलपाईगुड़ी के एक दिग्गज तृणमूल कांग्रेस के नेता और एक प्रमुख चाय उद्योगपति थे। उनके आकस्मिक निधन से पूरे जलपाईगुड़ी शहर और जिले भर में शोक का माहौल छाया हुआ है। उन्हीं हमारे जलपाईगुड़ी জেলারই বাসিন্দা। উনি 2007 থেকে 2010 পর্যন্ত আমাদের তৃণমূল দলের মুখ্য হিসাবে আমাদের জেলা পরিচালনা করতেন। তিনি জেলার সভাপতি ছিলেন তৃণমূল দলের। আবার 2019-এর শেষে 20-র দিকে আবার আমাদের তৃণমূল দলে তিনি সভাপতি ছিলেন। উনি খুব সুন্দরভাবে এই জলপাইগুড়ি জেলাটাকে পরিচালনা করতেন। 2021-এ শেষে আর কি, তখন আমাদের নতুন করে তৃণমূল দলের সভাপতি হয়, কিন্তু উনি আজকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, যার জন্য আমরা খুবই দুঃখিত এবং মর্মাহত। ও ওনার আত্মার শান্তির জন্য আমরা কামনা করি। আমি এই খবরটা পাওয়ার পরেই আমি কিছুক্ষণের মধ্যে বেরোবো ওনার আত্মার শান্তি কামনার জন্য, ওনার মরদেহের সঙ্গে দেখা করব। पश्चिम बंगाल और सिलीगुड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है नाबालिगों से दुष्कर्म की घटनाएं। वहीं आज राजगंज में नाबालिग से दुष्कर्म करने की कोशिश में एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में आए दिन नाबालिगों से दुष्कर्म और यौन शोषण के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं सिलीगुड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में भी इसी तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। वहीं इसी क्रम में राजगंज में नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 25 वर्षीय बाबूलाल रॉय के रूप में हुई। हमारा राजगंज ब्लॉक के कुकुरजान ग्राम पंचायत के सरकार पाड़ा का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कल दोपहर को उक्त नाबालिगा अपने घर में सो रही थी। आरोप है कि उसी समय पड़ोस का एक युवक
उक्त नाबालिग के घर में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। वहीं घटना को अंजाम दिए जाने के वक्त नाबालिगा के चिल्लाने पर उक्त युवक वहां से भाग निकला, जिसके बाद घटना की जानकारी नाबालिग के परिवार को मिली और उन्होंने राजगंज थाने में उक्त युवक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। वहीं शिकायत के आधार पर राजगंज थाने की पुलिस ने बीती रात उक्त युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं राजगंज थाने के आईसी पंकज सरकार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बीती रात भारी तूफान व काल बैसाखी से दहला पूरा सिलीगुड़ी शहर और उसके आसपास के इलाके। बीती रात काल बैसाखी तूफान ने और भारी बारिश ने पूरे सिलीगुड़ी शहर और उसके आसपास के इलाकों में तहलका मचा दिया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी से सटे फुलबाड़ी बटालियन जंक्शन क्षेत्र में 3 दुकानें भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार रात को तीनों दुकानों पर लोहे का विशाल बैनर स्टैंड गिर गया, जिससे 3 दुकानें जमकर क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार नक्सलबाड़ी क्षेत्र में भी आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई। वहीं जानकारी के अनुसार नक्सलबाड़ी क्षेत्र के मल्लाबाड़ी इलाके में तूफान के कारण पेड़ भी गिर गए, जिसके चलते बिजली सेवा इलाके में पूरी तरह से ठप हो गई। वहीं बीती रात इलाके के लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ক্ষয়ক্ষতি কি দেখতেছেন, গাছ পড়ে গেছে, বিদ্যুৎ নাই কাল রাত থেকে। হ্যাঁ, বিভিন্ন গাছ পড়ে গেছে, কারো কারো চালা উড়ে গেছে। এটাই তো। ঝড় কখন হয়েছিল? ঝড় মোটামুটি 2টা নাগাদ হয়েছিল ঝড়। আর কোথায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কিছু জানেন? আমাদের এলাকায় তো যেটা দেখতেছি এটাই ক্ষতি হয়েছে। অন্যান্য এলাকায় কি হয়েছে জানি না, কিন্তু যেটা আমাদের এলাকায় যেটা নজরে পড়ছে ওইটাই ক্ষতি হয়েছে। এই রাস্তা কোথায় যায়? এই নকশালবাড়ি। কি নাম আপনার? আমার নাম কামিনী মন রায়। আমরা ব্যাটেলিয়ান মোড়ে দোকানদার, কিন্তু কালকে সবাই জানা আছে কালকে গত রাতে খুব ভয়ঙ্কর একটা ঝড় হয়েছে। সেই এই ঝড়ের জন্য আমাদের ব্যাটেলিয়ান মোড়ের মধ্যে যে একটা ব্যানার ছিল, ব্যানারটা পড়ে গিয়ে 3টা দোকান ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এবং আরও ব্যানার আছে, ব্যানারটা ছিঁড়ে গেছে। কারণটা হচ্ছে সব ব্যানারে ফুটো করা থাকে, এই ব্যানারে ফুটো করে নাই, যার ফলে পুরো হাওয়াটাই ব্যানারের উপরে লাগাতে ব্যানারটা পুরো রেলিংগুলো পড়ে গেছে দোকানের উপরে। এবং বিশাল ক্ষতি হয়েছে, দোকানের ভেঙে গেছে। এবং সেটা আমরা প্রধানকেও জানানো হয়েছে, পঞ্চায়েতকে জানানো হয়েছে। দেখি প্রশাসন কী করে। কটা দোকানের ক্ষতি হয়েছে? 3টা দোকান। चाय बागान में एक बार फिर मृत तेंदुए का शव बरामद होने से मचा हड़कंप। जलपाईगुड़ी जिले के बानरहाट ब्लॉक अवस्थित डायना चाय बागान में एक बार फिर मृत तेंदुए का शव बरामद किया गया। वन विभाग सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को श्रमिक काम पे जा रहे थे, उसी समय श्रमिकों ने उक्त मृत तेंदुआ को देखा और तत्काल इस घटना की जानकारी चाय बागान प्रबंधक को दी गई और उसके बाद बिन्नागुड़ी वन्य प्राणी शाखा को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते वन विभाग कर्मी घटना स्थल पर पहुंचकर तेंदुए के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं वन विभाग ने बताया कि मृत तेंदुआ पूर्णवयस्क नर है। चाय बागान के सेक्शन नंबर 3 पर तेंदुआ पड़ा हुआ मिला था और इस बीच बताया गया कि तेंदुए की मृत्यु आखिर कैसी हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। बिन्नागुड़ी वन्य प्राणी शाखा के रेंजर सुभाशीष रॉय ने कहा कि तेंदुए को पोस्टमार्टम के लिए लाटागुड़ी प्राकृतिक पर्यवेक्षण केंद्र भेजा गया है। হ্যাঁ, সকালে ডায়না টিভি গার্ডেন থেকে একটা খবর আসে, এখানে একটা লেপার্ড মোড়ে পড়ে আছে। তা আমরা ঘটনাস্থলে আসি এবং দেখি একটা মেল অ্যাডাল্ট লেপার্ড এমনি মোড়ে আছে। এমনি অলরেডি ম্যাগট ফর্মেশন হয়ে গেছে, এটা 2-3 দিন আগের হয়তো ঘটনাটা। তা এমনি এখন তুলে পিএমের জন্য পাঠানো হবে। बाकी घटना पड़े ही बोलते पारबो। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ।
के तपाईँले सिलगढीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7 सम्पर्क नम्बर 9593517500 चंपासरी सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 84858। Inside Story located at Planet Mall basement. We have all products of Triumph, padded bra, non-padded bra, sportswear. Amante has lot of innerwear and lingeries. All product of Inamore available with discount. We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathroom, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tape, accessories. Inside Story located at Planet Mall basement. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। खबरें विस्तार से। भारतीय खाद्य निगम की ओर से मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा आज बुधवार को सिलीगुड़ी के एयरव्यू मोड़ पर रहे निजी होटल में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। इस समारोह में सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष, डाबूराम फुलबाड़ी की विधायक शिखा चैटर्जी, माटेगाल नक्सलबाड़ी के विधायक आनंदमय बर्मन उपस्थित थे। इस अवसर पर भारतीय खाद्य निगम की विभिन्न परियोजनाओं को आम जनता के सामने प्रस्तुत भी किया गया। भारतीय खाद्य निगम के सिलीगुड़ी मंडल प्रबंधक इंद्रनील मंडल ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लोगों को दिखाने के लिए प्रधानमंत्री के निर्देश पर इस साल देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत इस दिन यह समारोह का आयोजन किया गया। मूल रूप से केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। আমি ইন্দ্রনীল মণ্ডল, ডিভিশনাল ম্যানেজার, ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া শিলিগুড়ি বিভাগে। উনি আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার কিউসি সঞ্জয় কুমার। তো আমাদের আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি যে এবছর আমাদের স্বাধীনতার 75 বছর। সেই উপলক্ষে আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের একটা দিশানির্দেশ করেছেন যে আমরা যারা গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনগুলো রয়েছি, যারা মানুষের জন্য কাজ করি সরকারের এক্সটেন্ডেড আর্ম হিসাবে, তারা মানুষের কাছে গিয়ে তাদের কাজকর্ম, তারা এই যে 75 বছর আজকে স্বাধীনতার আমাদের পূর্ণ হচ্ছে, সেখানে আমরা মানুষের জন্য গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট হিসাবে কী কী কাজ আমরা করেছি তার সেগুলোকে নিয়ে কিছু বলা, তাদের সামনে উপস্থাপিত করা, তাদেরকে জানানো, সেইটারই একটা পার্ট হিসেবে আমরা গত বছর নভেম্বর মাসে এখানে একটা প্রোগ্রাম এখানেই করেছিলাম। एक अज्ञात वृद्ध महिला का शव बरामद।
सिलीगुड़ी हिमाचल कॉलोनी इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। एक अज्ञात वृद्ध महिला का शव आज बरामद किया गया। यह घटना सिलीगुड़ी के हिमाचल कॉलोनी इलाके की है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही प्रधाननगर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने बताया कि आज दोपहर हिमाचल कॉलोनी में जाने वाले फ्लाईओवर के नीचे से काफी दुर्गंध आ रही थी और फिर लोगों ने तलाशी की और फ्लाईओवर के नीचे खंबे के सामने एक बूढ़ी वृद्धा का शव पड़ा देखा गया। वहीं उसमें से ही उक्त दुर्गंध आ रही थी। इसकी जानकारी तत्काल प्रधाननगर थाने की पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी। हालांकि इस बीच पुलिस ने बताया कि वृद्धा की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन अभी भी उक्त वृद्धा की शिनाख्त की जा रही है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। আমরা দেশরাজ সিং। কি হয়েছিল, কি দেখলেন? এটা তো আমরাও জানি না, আমি তো এনবিএসসি চাকরি করি, আমি আজকে কলকাতা ডাউন হলাম, রেস্ট করছিলাম, তো শুনলাম যে এখানে একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে। আমরা থাকি এখানে, কিন্তু এখানেই ডেড বডি পাওয়া গেছে আমরা বুঝতেও পারিনি বা জানতেও পারিনি। এখন মিডিয়া আসার পরে একটু দেখলাম, জানলাম, তো সন্ধ্যার পরে এই এরিয়াটা খুব খারাপ হয়ে যায়। ডেড বডিটা তো মানে পুরো একটা গরিব মানুষ, ভিখারি টিখারি, বয়স্ক 60 আপ, কেউ চেনে না, কেউ জানে না। ডেড বডিতে পছন্দ রয়েছিল? হ্যাঁ, একটু গন্ধ তো বেরোচ্ছিল। আমরা এই মাস্ক পরে বেরোলাম ঘর থেকে। মহিলা ছিল না পুরুষ ছিল? সাহেবদের কাছ থেকে যারা আসছিলেন অফিসাররা, তারা বলছেন মহিলা, 60 আপ বয়স। আমি তো ঘুমাচ্ছিলাম, আমি নাইট করে আসছি, তো আমি ড্রাইভার, রাত করে আসছি, তো ঘুমাচ্ছিলাম, তো একজন আমাকে ডাকলো যে এখানে তোমার রুমের পাশে ডেড বডি পাওয়া গেছে, রুমের উল্টা দিকে গন্ধ বেরোচ্ছিল। হ্যাঁ, একটু গন্ধ বেরোচ্ছে, তারপরে মাস্ক পরে আসলাম আর কি। আপনার নাম? আমার নাম देशराज सिंह। युवती का फंदे से लटकता मिला शव, पूरे इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज ब्लॉक के पानीकौरी ग्राम पंचायत के कुंदर दिघी इलाके में युवती का फंदे से लटकता शव बरामद किए जाने की घटना को लेकर आज पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं मृतक युवती की पहचान 19 वर्षीय लक्खी रॉय के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार लक्खी रॉय के घर के परिजन सभी लोग रोज की तरह काम पर गए थे और सिर्फ घर पर लक्खी रॉय और उसकी बहन थी। जब उसकी बहन थकी हारी सो गई थी तो लक्खी रॉय ने दूसरे कमरे में जाकर फंदे से खुद को लटका दिया। वहीं इस घटना के बाद तत्काल परिजनों ने उसे बरामद कर राजगंज के ग्रामीण अस्पताल में चिकित्सा के लिए पहुंचाया, जहां मौजूद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही राजगंज थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर उक्त शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। জানতে কি বাড়িতে তো কিছু ছিল না, কিছু বলতে পারি না, সবাই তো কাজে গেছে। এখন শোনা যায় দুই বাড়িতে ছিল, দুই বোন, ছোট বোন এক ঘরে ঘুমাইছে আর বড় বোন সবাই তো ঘুমাইছিল। এখন ছোট বোন ঘুম থেকে উঠে দেখতেছে দিদি এখনো উঠে না, ব্যাপার কি, তারপরে গেট খুলে দেখে কি নাম? লক্ষ্মী রে। কেমন বয়স হবে? বয়স মোটামুটি 19। কোন ক্লাসে পড়ে? 11-এ। এই পথ কেন বেছে নিল বলে মনে হয়? কি কারণে এমন কি করে জানবে? জানলে তো কোনো ব্যাপার, এই ব্যাপারটা জানলে তো কিছু ব্যাপার ছিল না। বাড়িতে কোনো কেচাল না ঝগড়া? না, কেচাল ঝগড়া কিছু নেই। নিজের ঘরে? নিজের ঘরে। নিজের বাড়িতে। কি দিয়ে দিয়েছে? ওনার ছিল। আজকে কোথায় নিয়ে এসছে এখন? আজকে নিয়ে আসে তো কালকে রাজগঞ্জ থানায় মর্নিং থেকে, এখন জোলাগুড়ি পাঠাবে ওর ম্যাডামে। মর্গাটাকে কি আপনারাই নিয়ে এসেছিলেন কি না পুলিশ নিয়ে এসছে? নিয়ে আসছে। আপনারা নিয়ে এসছে। जलपाईगुड़ी जिले के हल्दीबाड़ी चाय बागान के सेक्शन नंबर 4 से 3 बाइसन के शव बरामद। चाय बागान इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी वन विभाग की टीम। जलपाईगुड़ी जिले के बानरहाट प्रखंड के हल्दीबाड़ी चाय बागान के सेक्शन नंबर 4 के खूटीमाड़ी बीट के CMG 12 सोशल फॉरेस्ट क्षेत्र में आज मदर बाइसन और 2 शावकों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं चाय बागान की ओर से तत्काल इस घटना की जानकारी मोराघाट वन विभाग को दी गई, जहां खबर मिलने के बाद मोराघाट के वनकर्मी एवं नथुआ रेंज के वनकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। इस बीच
मोराघाट रेंज के एक रेंजर राजकुमार पॉल ने कहा कि प्राथमिक जांच के बाद अनुमान होता है कि देर रात बिजली की चपेट में आने से 3 बाइसन की मौत हो गई है। हालांकि उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बाइसन के मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा। हाथी के हमले में घर हुआ क्षतिग्रस्त, एक व्यक्ति इस घटना में घायल। हाथी के हमले में एक घर क्षतिग्रस्त हो गया। यह घटना जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज प्रखंड के मिलनपल्ली क्षेत्र में घटी, जहां इस घटना में एक व्यक्ति भी घायल हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार एक हाथी ने वेंकटपुर जंगल से निकलकर राजगंज प्रखंड के रहायशी गांव मिलनपल्ली के घर में हमला कर दिया। वहीं मिलनपल्ली गांव के प्रहलाद सरकार नामक व्यक्ति के घर पर हमला हुआ। उसी समय वे कमरे में लेटे हुए थे, जहां उस वक्त हाथी ने उसे हमला कर दिया। इस बीच सुबह के वक्त जंगली हाथी रिहायशी इलाके में घुसकर तांडव मचाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार उक्त जंगली हाथी ने विभिन्न पौधे भी नष्ट कर दिए हैं। पुलिस ने 3 लापता बच्चों को उनके परिवार वालों के पास पहुंचाया। प्रारंभिक अनुमान में बताया गया कि बच्चों की तस्करी का मामला। मालदा जिले के रतबाड़ी चौकी की पुलिस ने 3 बच्चों को अन्य राज्य में ले जाने से पहले बचाया। बुधवार को रतबाड़ी चौकी के ओसी सत्यव्रत भट्टाचार्य की मौजूदगी में उन बच्चों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। सूत्रों के अनुसार गाजोल में एक आवासीय घर के 3 बच्चे कई दिनों से लापता थे। मंगलवार की दोपहर उन्हें रतबाड़ी इलाके में संदिग्ध तरीके से घूमते हुए देखा गया। उसके बाद उन्हें पकड़कर रतबाड़ी पुलिस चौकी पर लाया गया था। इस बीच उक्त बच्चों को बुधवार को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने अनुमान लगाया कि अन्य राज्यों में बच्चों की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद।